Students, myself Manisha Mane. This is third B chapter, elasticity of demand. In this segment, explain methods of measuring price elasticity of demand. There are three methods of measuring price elasticity of demand. Which methods? Ratio method, total expenditure method, and geometric method. So first one, explain and study about ratio method. What is meant by ratio method? Ratio method is explained by Professor Alfred Marshall. And ratio method is also known as arithmetic method oblique percentage method. In this method, measurement of elasticity means dividing percentage changes in quantity demanded by percentage changes in price. सो रेशियो मेथड को ही परसेंटेज मेथड या फिर अर्थमेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है. ये मेथड प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने एक्सप्लेन की है. उसके साथ में ही परसेंटेज मेथड में कैलकुलेशंस या फिर जो एक्सप्लेनेशंस किया जाता है वो है परसेंटेज चेंजेस डिमांड by percentage changes price and get the informations of the different quantity या फिर different price and changes the ratio. So this method measures use of the formula. So first one, ED is equal to percentage changes in quantity demanded upon percentage changes in price. First, this formula, study of the price elasticity. Again repeat, use of the ratio method. Means second, then ED is equal to symbolically percentage change Q upon percentage change P. Further, use of the ratio methods, mathematically formula can be presented. Mathematically formula means symbolically formula. Solve the sum, solve the numerical informations. So which formula? Last one's use of the formula is a change Q upon Q into P upon change P. So this formula is useful to the ratio method. हमें रेशियो मेथड में जो फार्मूला यूज़ करना है तो ये फार्मूला मीन्स मैथमेटिकली फार्मूला हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है. उसके साथ में इसके बाद हम लोग वहाँ पर रिटर्न फार्मूले में लास्ट वन नंबर्स देखेंगे. सो मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द टाइप्स. विच टाइप्स? इन लास्ट लेक्चर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Means perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, unitary elastic demand, relatively elastic demand, and relatively inelastic demand. But in our real life found three types. First one, ratio method and total outlay method. Which types? So unitary elastic demand, relatively elastic demand, and relatively inelastic demand. So any example, solve and understand the ratio method. In the above table shows price, demand, formula and elasticity. So first one, explain the table. Means original price is a 20 and new price is a 25. Means to calculate the change price. So change price is the 5. So ये change price 5 हमें कैसे मिली है तो इसका भी मीनिंग हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी के टाइम में देखा था. हमें क्या करना पड़ता है? डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल प्राइस एंड न्यू प्राइस. ओरिजिनल प्राइस इज अ 20 and new price is a 25. Means this difference is the 5. So change P is equal to 5.
Next one, to calculate quantity demanded. Quantity demanded measure units means in kg. So first one, original quantity demand is 10 means Q is equal to 10. Next one, new quantity demand is 9 and change Q is equal to, again same difference between original quantity demand and new quantity demand means 10 minus 9. So get the answer is a change quantity, change Q is equal to 1. तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों को ऊपर के टेबल में फर्स्ट वन क्या दिया है, सो प्राइस एंड डिमांड दिया है। उसमें से जो पहली प्राइस दी है उसे हम लोग ओरिजिनल प्राइस बताते हैं। ओरिजिनल प्राइस है 20। उसके बाद जो सेकंड प्राइस है उसे हम लोग न्यू प्राइस बताते हैं, वो है 25। तो हमें ओरिजिनल प्राइस मतलब पी का आगे 20 मिला है। उसके बाद हम लोगों को चेंज पी निकालना है। तो चेंज पी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सो वहाँ पर न्यू प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है। तो इन दोनों का डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो हमें डिफरेंस कितना मिला है, 5। इसका मतलब क्या है, चेंज पी 5। उसके बाद हम लोगों को क्वांटिटी डिमांड भी सेम कैलकुलेट करना है। तो क्या क्वांटिटी डिमांड में हम लोगों ने क्या किया है, सो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास, 10 थी मीन्स 10। उसके बाद न्यू क्वांटिटी थी 9 और चेंज क्वांटिटी कितनी मिली है, 1, क्योंकि इन दोनों का सब्ट्रैक्शंस करने के बाद जो आंसर मिला है वो कितना है, 1 है। अभी हम लोग फार्मूला लिखेंगे। सो हमारा जो वहाँ पर मैथमेटिकली फार्मूला है मीन्स ई डी इज इक्वल टू चेंज क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज पी। अभी अप्लाई द फार्मूला एंड फर्स्ट वन, वहाँ पर चेंज क्यू, सो हमारा चेंज क्यू कितना है, 1 अपॉन क्यू मीन्स ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 10। सो वहाँ पर फर्स्ट वन हम लोग क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 10। इसके बाद इंटू मीन्स मल्टीप्लिकेशंस का सिंबल देंगे और P मीन्स ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस हम लोगों ने ऊपर देखी है तो वो है 20। उसके बाद हम लोगों को जो चेंज प्राइस में है, सो चेंज प्राइस कितनी है, 5 है। तो इस तरीके से हमारा वहाँ पर अप्लाई मीन्स वहाँ पर नंबर्स रहेंगे 20 अपॉन 5। और फिर हम लोगों को सिंपल तरीके से इसे कैलकुलेशंस करना है, मल्टीप्लिकेशंस और डिवाइड। तो हमें इसका आंसर मिलता है ई डी इज इक्वल टू 0.4। और 0.4 का मतलब क्या है, लेस दैन 1, एक 1 से कम है। इसका मतलब हमारा कौन सा टाइप हो गया, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से आप लोगों को इसे बहुत अच्छे से कैलकुलेशंस करना पड़ता है और इसमें कौन सा टाइप्स आता है ये हम लोगों को दिखाना पड़ता है। अब ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, और एक एग्जांपल और एक टेबल में आप लोगों को बताती हूँ और इससे अच्छे से समझ में आएगा। इन द अबाउट टेबल गिवन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड डिमांड प्रेजेंट यूनिट्स। First one, original price X commodity is 200 rupees means P is equal to 200. Then new price is 100 means third one, change price. So change price is equal to 200 minus 100. So to get the answer is 100. So हम लोगों को चेंज प्राइस 200 में से हम लोग न्यू प्राइस को माइनस करेंगे 100, तो चेंज प्राइस कितनी मिल रही है, 100 मिल रही है। अभी हम लोग डिमांड का भी सेम कैलकुलेशंस करेंगे। हमारा फर्स्ट वन ओरिजिनल क्यू कितना है, 1000 है। सो ओरिजिनल क्यू के आगे आएगा 1000। उसके बाद न्यू क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 1500, वो हम लोग लिखते हैं। थर्ड्स वहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग चेंज क्यू लिखते हैं। तो चेंज क्यू में अभी आप लोग को समझ में आया होगा कि इन दोनों का डिफरेंस दिखाया जाता है। मीन्स 1500 माइनस वहाँ पर 1000, वहाँ पर 1500 में से हम लोग थाउजेंड्स को वहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें चेंज क्यू कितना मिल रहा है, 500 मिल रहा है। अभी सबके वहाँ पर कंटेंट्स मीन्स न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, किसकी, पी चेंज पी, क्यू चेंज क्यू। अभी हमारे लिए आसान रहेगा फार्मूला अप्लाई करना। मुझे लगता है फार्मूला आप लोगों को पहले से अच्छे से याद रहेगा।
सो अभी हम लोग अप्लाई करते हैं ई डी इज इक्वल टू चेंज क्यू की जगह पे कितना आएगा 500। उसके बाद अपॉन ओरिजिनल क्यू की जगह पे कितना आएगा 1000। उसके बाद इंटू पी मीन्स ओरिजिनल प्राइस कितनी है 200। सो हम लोग वहाँ पे 200 लिखेंगे एंड अपॉन चेंज प्राइस कितनी है 100 है। तो ये लिखने के बाद आप लोग आसानी से इसका कैलकुलेशंस करके चेक करो तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। मीन्स ई डी इज इक्वल टू 1 एंड दिस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी इज अ यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल लेके या फिर जो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन से हम लोग वहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि किस टाइप्स की इलास्टिसिटी आती है। यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड आता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आता है या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड आता है, क्योंकि ये 3 टाइप्स वहाँ पर हमें रियल लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मीन्स फर्स्ट वन मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।